أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. My dear fellows and students and my colleagues and those candidates who are appearing in the undergraduate or in the postgraduate examinations, or rather in the country or outside the country, or those who are doing the research works, manuscripts, etc., for the MPhil and for the PhD in internal medicine or gastroenterology. Now, I want to talk something about this thing that is a thing which is actually in your mind. That probably is the shigellosis or forgotten infection. So in my 45 years of life, I am Professor Sayyid Ali Adar, and I am a senior visiting professor of the medicine, Janasindh Medical University. I have seen about 18 cases of proved shigellosis in my 45 years of career. Only 18 cases have been seen. Because it is a misdiagnosis or underdiagnosis, you can say. Not over, it's under. Because you have not proved this is the cause of that bloody diarrhea, so-called. This infection was not open to everybody, every clinician. Because this disease has got the high mortality in certain geographical areas, it is important to understand a forgotten infection. What it does is, you know that there is a terminology which we are using many, many times before. What is diarrhea? What is dysentery? What is terrible diarrhea? What is food poisoning? What is gastroenteritis? What is gastroenterocolitis? Tablet diarrhea, and so on and so forth. There are many, many terminologies which are interrelated terminologies. And this thing which is written here is causing a very specific type of illness, and that is called shigellosis. And that is called shigellosis, and you have to differentiate between diarrhea and dysentery first. Shigellosis is called dysentery. Shigellosis will not cause diarrhea. Now, diarrhea, the effects of the diarrhea are not that serious apart from the risk of diarrhea. This is the thing. This is the motions. Diarrhea, because definition of diarrhea is difficult. It can be defined by appearance, by volume, by frequency, etc., of defecation, nature of the stool, etc. It depends upon this. So diarrhea is a broad terminology. It may be simple water diarrhea, or etc. You can say bloody diarrhea or rise stool diarrhea, etc., etc. And there are many terminologies. Now, those type of these loss of the feces amount and volume, etc., that can cause dehydration or electrolyte imbalance. This is called diarrhea. It may not be associated with any type of the colic. It may be simple without colic. But here, the dysentery has to give, if you call a person he has a dysentery, it should be fulfilled like this. Number one, point of the dysentery, that remember that it is the involvement of the large intestine, not the small intestine. First of all. Number two, inflammation occurs in the colon because of some specific microbiological agent which cause some type of ulcerations, and the patient, when go for the defecation, he will see that he is passing the stool with mucus, number one, or he is passing the blood in the stool, number two, and number three is that he may be passing both mucus and the blood. It one thing in this, no problem.
It should be associated with the fourth one, that is tenesmus. Without tenesmus, dysentery cannot be described. Remember this terminology. Tenesmus means tenderness in the paracolic gutters. You cannot, the patient says that there is a problem here, there is pain in this. Maybe colic pain, maybe non-colic pain. The pain will be there. But the thing is, you have to demonstrate on the patient that the paracolic gutters means it is in the area of the right iliac fossa, and it is covering the lumbar areas, both of them, and the left iliac fossa also, and some part of the upper abdomen, where the colon is traveling. This is called dysentery. It should be associated. So, because you are losing blood, you are losing mucus, and so some of them also losing water, it is a more complicated disease. But you are losing everything here. Now, this is the basic difference between the diarrhea and dysentery. Basic difference. It should be associated with this. Diarrhea doesn't depend upon the coming of mucus or blood. No. It should include the blood and mucus, blood, oblique mucus, plus tenesmus. That is the formula for the dysentery. Without it, it is not dysentery. The causative agent of dysentery are three in my life. I have seen only three conditions which cause actually the dysentery. And that is amoebic dysentery, very common in your country. Bacillus dysentery, not uncommon. And third one is the blantendial type of dysentery, which is rare. There are three dysenteries which I know. As far as amoebic are concerned, I have seen many cases, I think thousands of cases. But as far as the Shigella dysentery, caused by the Shigellosis that is called, I have seen 18 cases only, which I have demonstrated it, and I have presented the case in the ward also. It is a bacillary dysentery, not amoebic dysentery. Although the etiological agent, predisposing factors are the same. That is F-flies and food and fomites and other things you are touching, unwashed hands. And basically the problem is the hygiene. Hygiene is poor. You are asking these gram-negative bacteria, Shigella, to enter into your body and cause illness. That is all. Forcefully you are introducing. Abel Mujamal, that is called. So, the diarrhea versus dysentery is this. No, the diarrhea, the small intestines are involved mostly. The colon is not much involved. And the condition causing the loss of the water and electrolytes, which can cause dehydration and electrolyte imbalance. But here it is nothing like this. The chances of dehydration is less rather than the chances of acute anemia are more. It may or may not cause any, associated, it may be associated with the colic, it not may be associated with the colic, but rather tenesmus you can say. You see the inside now here, in the colon, this is a part of the colon under the lower microscope, that is ulcerations are scattered ulcerations are seen. In amoebic dysentery, small ulcerations are seen. But both are oozing blood and mucus. The introduction of dysentery is derived from the Greek word dys, meaning blood, bad, and enteric, meaning bowel, dysentery. Dysentery is the clinical condition in which there is inflammation of the intestine. Intestine means large intestine accompanied with the bloody diarrhea with the cramps. That is important word which we are using, tenesmus.
and passage of the mucus or passage of the blood. Types of the dysentery based on the etiology, there are two main forms. Basically, maybe a third is also there, that is called Blindendium coli, Blindendiasis, which is very rare in this country because we are not using beacons here, and those countries in which the source of meat is basically the beacons, they can develop the third one, that is Blindendiasis. Although Blindendiasis can occur in HIV without beacon, it is possible. Shigellosis is an infection of the intestine caused by the Shigella bacteria, gram-negative bacteria. That's all about it. Look at these features of the gram-negative. Gram-negative bacteria, they are standing pinkish. You can see here basali. This is not. This is the basali. These are the basali. This. Different, they have a morphology long. Some are small. They are moving here and there. How about the world incidence is concerned? Let me talk about it because we don't know actually exactly the number which we are facing in our country. Exact number is not being documented. Now, insufficient data exists, but it is estimated to have the death of about 34,000 children under the age of 5 in 2013. And 40,000 deaths in people over the 5 years of age. That's globally speaking. Now, Shigella also causes about 80,000 cases annually among travelers and military personnel from the industrial countries. Morbidity, this is morbidity. Morbidity is 5,80,000. You cannot diagnose. Actually, thinking you are missing this diagnosis. That is a missing type of infection. A forgotten infection. That is why I call it forgotten. An estimated of 500,000 cases of Shigellosis occur annually in United States, like developed countries. With hygiene, they call themselves hygienic. Infants, the elderly, and the critically ill are susceptible to the most severe symptoms of the disease, but all humans are susceptible to some degree. Individuals with acquired immune deficiency syndrome that I have told you, they are more frequently infected with Shigella. They are more chances of amebia, amebiosis, and blindendiasis. Shigellosis is a more common and serious condition in developing world, and the fatality rate of Shigellosis epidemic in developing countries about 15%, 5 to 15%. Japan and the Philippines and Southeast Asia, definite data was collected. Orthodox Jewish communities are known to this group, racial Shigellosis. Shigella soni is cyclically epidemic in these communities in Israel, and sporadic outbreaks occurring elsewhere among these communities. Though the phylogenetically and genomic analysis showed that the strains relate to a single multi-drug resistant sublineage of the Shigella soni that prevails in Israel. Because Israel is a part of America, you see. They are much worried about their Israel हो गया तो बहुत घबरा गए. Further, Basilian phylogenetic analysis showed that this strain emerged after approximately 30 years in Shigella soni is concerned. And noting the speed at which the antimicrobial drug-resistant pathogens can spread widely through geographically dispersed, internationally connected communities. No doubt they study, they are going. Research work. यहाँ क्या मसला है मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ. यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी मसला ये है कि यहाँ पे कोई बात किसी की मानने को तैयार ही नहीं, ना सुनने को तैयार है ना मानने को तैयार है. तो लिहाजा यहाँ पे जो ये वर्क जो होता है ये मुतासिर होता है, रिसर्च वर्क. यहाँ पे आपको लोगों से इत्तेफाक भी करना पड़ता है, इख्तलाफ भी करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है. तो तहकीक जो है उसको करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए आपको जो है ना तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा.
तो आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, जब तनकीद आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप तहकीक नहीं कर सकते। ये पैरेलल है इसकी। और थर्ड बात ये कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं, इतनी आपको एक होती है ना डिज़ायर होती है कि भाई मैं रिसर्च वर्क करूँ, ये प्रूव करूँ। वो माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनको ज़ाहिर है इसमें आगे आके आना चाहिए था। हमने तो उनको स्टूल प्रेजेंट कर दिए, उन्होंने उसको पकड़ा ही नहीं। हमारा क्या इसमें वसूल है। तो इसके लिए जो है ना आपके पास जो है टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ये पता लगाने के लिए कि ये डिसेंट्री जो है ये शिगेला की है। शिगेला जब भी डिसेंट्री होगी याद रखिए, एक रूल याद रखिएगा, शिगेला के जितने भी पेशेंट डिसेंट्री के होते हैं उनको एडमिट करें हमेशा। ये WHO की रिकमेंडेशन है। अनमिक डिसेंट्री वाले को ना करें, ब्लड इंडियसिस वाले डिसेंट्री को ना करें। इस पेशेंट को आपको करना पड़ेगा, बिकॉज हेयर यू सी दिस, look the mortality, look the morbidity, both are important. Although swine infection is not very dangerous infection, but it will cause problems, burden on the budget. because वो सारे के सारे जो होते हैं वो उनको कर देते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो आदमी जा रहा है जाने दो, मरता है तो मरे। यहाँ तक इस किस्म की कोई मसला है ही नहीं। इस कंट्री में कोई वारिस इस टाइप का है ही नहीं। कुछ थे एरिया हमने देखे अपनी ज़िंदगी में जिसमें उन्होंने केयर की है पेशेंट की, गवर्नमेंट ने। लेकिन इसके अलावा हमने कुछ यानी ज़्यादातर एरियाज अपनी ज़िंदगी की जो मैंने देखे हैं, मैं 66-7 ईयर्स ऑफ एज रहा हूँ, इसमें जो है मैंने जो देखा है वो ये देखा कि निगलेक्शन ही निगलेक्शन है। लोग जो है वो मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, ना तहकीक करने को तैयार है। जब आप तैयार ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है डॉक्यूमेंटेड कैसे अब निकालेंगे आपने, मुझे पता है। आप एक जगह दे देते हैं एरिया, उसका आप डेटा बना के दे देते हैं, तो ये तो कोई तो कंट्री वाइज तो आप नहीं बना सकते ना कि आप पूरे पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, वो तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके पेपर को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, अमेरिकन जर्नल नहीं करते, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पेशेंट कम होते हैं। फिर जोग्राफिकल एरिया जो आप शो कर रहे हैं, कराची का एक ईस्ट जोन शो कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, वहाँ से आपने कलेक्ट कर लिए, वो क्यों मानेंगे आपकी इस चीज़ को इंसिडेंस या प्रेवलेंस नहीं मानेंगे ना आपको। इंक्यूबेशन पीरियड ये है, स्टार्ट 1 to 2 days आफ्टर एक्सपोजर। वो जो बैड हाइजीन की वजह से डायरिया पेशेंट को, ये डायरिया स्पेसिफिक है, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड feeling the need to pass stools even when the bowels are empty। तो इसमें जो सेंसेशन है वो ये है कि आप आफ्टर डिफिकेशन, पोस्ट डिफिकेशन, देयर इज सेंस ऑफ समथिंग इन द एब्डोमेन इज देयर ऑल्दो द बाउल्स आर एम्प्टी। डायरिया में भी डायरिया अगर आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ब्लडी होगा, लेकिन डिसेंट्री अगर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शराइत पूरी करनी पड़ेगी जो मैं पहले बता चुका हूँ। Symptoms typically last 5 to 7 days and it may take several months before bowel habits return to normal। अब ये कहते हैं कि 7 days में गला चंगा हो गया, गलत है। उसको थोड़ी तकलीफ में रहेगा, वो बाउल हैबिट उसकी जो है ना नॉर्मलाइज नहीं होगी, उसके लिए मंथ्स लग जाएंगे। ये बात समझा दें हम लोगों को, तो वो मरीज आते रहते हैं बराबर इसके, अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अब हमारे पास जो है ना, इससे पहले मैं आगे चलूँ, हमारे ये जो लेक्चर हैं इसको सुनने में एक साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और वो वेरी फेमस पर्सनैलिटी हैं हमारे एरिया की, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। उनके फादर को इसी तरह से डायरिया हुआ, वो डायरिया जो था उन्होंने कंट्रोल कर दिया। उन्होंने उसमें ज़ाहिर है कि ड्रग्स भी दी, और वो अच्छे डॉक्टर हैं, वेरी नाइस मैन। और उन्होंने मेरे से मशवरा किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी मतलब ये था कि ही इन्वॉल्व, बेसिकली उनमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो कोरोना का हुआ है, जो मैं समझाऊँ वो बता रहा हूँ। उन्होंने उसको जो है ना एनालिसिस भी के लिए भी दिया, उनको कुछ पर्सनल मिल गया उनको, लेकिन उनके कल्चर के अंदर उसमें स्पेसिफिक, इसमें सब कल्चर करने पड़ते हैं बहुत सारे,
वो आपके पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है भाई। अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे डायग्नोसिस बनाओगे? इसके जो जो डायग्नोस्टिक टूल है या गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं वो तो फीसिस है। फीसिस के एग्जामिनेशन में कल्चर है, और कल्चर के अंदर आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये ग्राम नेगेटिव विजिलेंस तो है, तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव विजिलेंस है, वो शिगेला है। शिगेला सुना है महदूद है, लेकिन दूसरी वाली टाइप में जैसे आगे आएगी बात आप सुनिएगा तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिकल है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये है कि फीकल रूट है, जिसके अकर वाया कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और हैंड्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। कंटामिनेशन में भी स्प्रेड बाय फ्लाइज, एफ जो मैंने पहले बताया था। और डायपर्स की चेंज करते हुए जो है ना मदर इन्वॉल्व हो गई। डायग्नोसिस स्टूड बात या यही चीज़ रह गई है, फिर वहीं पे हम वापस उतर आए। हर चीज़ करा के देख लीजिए, वो नॉर्मल हो गई, अभी भी वो ठीक नहीं है उनके वालिद, तो वो तो टाइम लेगा ना। आपने उनको ट्रीट कर दिया तो वो तो आप अभी मैंने बताया कि उसमें तो टाइम लेगा। इट मे टेक मोर देन, इट मे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मोर देन दिस। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको जो है ना कंप्लाइंस की जो ज़रूरत पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है। और ये समझाना है कि भी कुछ ये जो मसले मसाइल हैं इसको बर्दाश्त करेंगे, डाइट अपनी रखें अच्छी, नरिशमेंट अच्छी रखें, वो ठीक हो जाएंगे। ये बार बार जो है ना ड्रग देना, फिर ड्रग इंड्यूस जो है ना डायरिया हो जाएगा उनको। अगर आप बार बार ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे कि कोई, अब आपने एंटीबायोटिक देने के बाद स्टूल को कल्चर करा लिया तो वो फिर उसकी एफिकेसी स्टूल की तो कम हो जाएगी ना, जाहिर बात, वो तो डेमोस्ट्रेट भी नहीं कर सकेगा। माइक्रोस्कोपी की बात होगी, कल्चर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो कल्चर कैसे करते हैं अब आपको आगे बताते हैं। एटियोलॉजी ये कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अमीबिया जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है। शिगेलोसिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन शिगेला, बैक्टीरियम दैट इज जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर टू एंड वाज वंस क्लासिफाइड एज शिगेलोसिस। और दोनों के अंदर डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो गया, वो भी बेसिलस है, ये भी बेसिलस है। तो देयर आर 3 सीरो ग्रुप्स एंड 1 सीरो टाइप ऑफ शिगेला। सीरो ग्रुप बहुत सारे हैं, सीरो टाइप शिगेला है। अब इन सीरो ग्रुप्स के अंदर की बात कर रहे हैं, फ्लैगेलराई है, बॉडी है, डिसेंट्री है, शिगेला सुना है। आपकी कंट्री में कौन सा पाया जाता है? या सोना है, सीरो टाइप इसकी एक सीरो टाइप है, बाकी सारे सीरो ग्रुप्स हैं। इसके मज़ीद वो चाहें तो आप सीरो टाइप निकाल सकते थे, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं हुई किसी में, तो इतना रिसर्च वर्क नहीं हुआ इस पर, तो नहीं, हमें नहीं पता। फ्लैगेलराई, बॉडी, डिसेंट्री, ये तीनों के तीनों जो लिखे हैं ये बहुत हार्मफुल। इनमें से शिगेला फ्लैगेलरी जो है या बॉडी प्रोबेबली ये ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारी जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट कंट्रीज है, इनमें ज़्यादा होता है। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है शिगेला डिसेंट्रिया। ये बहुत इन्वेसिव शिगेला है और इससे डेथ बहुत ज़्यादा अचीव हो जाती है, बहुत हाई रेट पे चला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय एनी गिवन स्ट्रेन शिगेला वेरीज अराउंड द वर्ल्ड है, वो पहले बता दिया। कॉमन सुनाए है, डिसेंट्री बॉडी आर रेयर। ये जो है पाए जाते हैं अक्सर में, जो पाए जाते हैं इन कंट्रीज में पाए जाते हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, कोरिया है, जापान है, यहाँ से सारे एरिया से। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लैगेलराई। फ्लैगेलराई इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन शिगेलोसिस कॉजिंग डायरिया इन कंट्रीज विद अ लो इकोनॉमिक स्टेटस। ये पाकिस्तान के जनरल से लिया गया। No study has been carried out on the molecular prevalence of Flagellari, ये common infection है in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ये commonest है। So this study was designated to evaluate the molecular prevalence of the Shigella Flagellari। ये कॉमन था, 2014 में उन्होंने ये सैम्पलिंग की है। अब ये क्या अपने रिजल्ट बता रहे हैं पख्तूनख्वा सब अपने अपने एरिया में, जबकि इनके नंबर ऑफ पेशेंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है।
नंबर 160 है, उन्होंने लिखा है 7.9% शिगेल्लोसिस स्पीशीज इसमें पाई गई हैं। टोटल ऑल प्रेवलेंस ऑफ अगर जो डायरिया था, डायरियल स्टेट थी, उनमें फ्लैक्सनेरी जो थी वो ज़्यादा पाई गई, बराबर बॉडी जो है 3.1% है। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। इंटरेस्टिंगली नो सैंपल वाज फाउंड पॉजिटिव, सुना है, जो कि इन्फेक्शन है और डिसेंट्री, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये नहीं पाया गया। द मेजॉरिटी ऑफ द शिगेल्लोसिस केसेस अकर फ्रॉम जून टू सितंबर, यही है महीने जिनमें जो गर्मी का मौसम। Potential risk factor related to the shigellosis were unhygienic Latin usage, etc. 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 पीडियाट्रिक वर्ल्ड में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, घर में लेके आते हैं बाहर से। तो इसका ख्याल कीजिए कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसके फ्लैक्सनेराई है या फिर बॉडी, ज़्यादातर फ्लैक्सनेराई को आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। सिंध में कितना है, बलूचिस्तान में कितना है और पंजाब में कितना है, ये बात 100% नहीं मालूम। टोटल कितना है, छोड़ें इस बात को, मुल्क में कितना है इसका प्रेवलेंस, आपको नहीं मालूम। ट्रांसमिशन शिगेल्लाई ट्रांसमिट थ्रू द फीकल रूट, आपको बता दिया पहले ही था। बेसिकली जो है ना अनहाइजीनिक है, और जो बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट नॉट जस्ट ह्यूमन बट प्राइमेट्स एज वेल, बंदरों को, मानसों को, गोरिल्ला, इनमें भी होता है, उनका कोलन भी इफेक्टेड होता है, वो भी इसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। पैथोजेनेसिस क्या है, अपॉन इंजेक्शन द बैक्टीरिया पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट until they reach the small intestine, they then begin to multiply until they reach the large intestine। यानी ये कल्चर मीडिया स्मॉल इंटेस्टाइन में बना, उनके नंबर बढ़ गए और लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट किया। In the large intestine, the bacteria cause cell injury and beginning stages of shigellosis by two main mechanisms: direct invasion, epithelial cells in the large intestine, and production of enterotoxin 1 and enterotoxin 2। इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है जब आप बायोप्सी लेते हैं वहाँ से। तो अनलाइक अदर बैक्टीरिया, शिगेल्ला इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड की जोन से निकल के बाहर आएगी। As a result, it takes only 10 to 200 cells। अब देखिए इसकी जो है इन्फेक्टेड डोज सिर्फ 10 to 200 सेल, बहुत कम है ये। यानी आपके पास सिर्फ जो है ना 10 to 200 सेल्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो फिर ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो ये डिजीज प्रोवोक हो जाएगी। द इन्फेक्टेड डोज इज इन सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर दैन अदर स्पीशीज पे डिपेंड करता है। जैसे कॉलरा कॉज बाय द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी हैज एन इन्फेक्टेड डोज बिटवीन 10⁻8 to 10⁻11 से। आप सॉरी इसको देखें और इसको देखें, सिर्फ 10 सेल ही काफ़ी होते हैं, और माइकोबैक्टीरियम में तो 1-2 ही काफ़ी होते हैं। ये अल्लाह कुदरत देखें। और 10⁻8 कम से कम चाहिए होते हैं, मैंने 10⁻6 कम से कम चाहिए होते हैं नॉन टाइफाइडल अगर इन्वॉल्वमेंट इंटेस्टाइन की, और 10⁻8 to 10⁻10 आपको चाहिए इन्फेक्टेड डोज अगर आपको एंटेरिक ग्रुप ऑफ फीवर बनाना है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, उसको मैंने पहले बताया, क्रैम्प, डायरिया। अब ये पस म्यूकस है, ये पस ब्लड के साथ है, म्यूकस है ब्लड के साथ है, फीवरिश कंडीशन है पेशेंट की, अगर वो पेनिट्रेट कर गया है, जो कि जाहिर है कि मैंने अभी जिन पेशेंट के वाक़या सुना रहा हूँ उनमें ऐसे ही हुआ है। ऑनसेट टाइम इज 12 to 96 आवर्स एंड रिकवरी टेक 5 to 7 days। एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ, मरीज़ को पसंद नहीं है कि आप उसको पूछें पखाने आ रहे हैं तो रंग कैसा है, तो स्मेल कैसी है, अपना वो अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन उससे पूछना पड़ेगा। वो उसे पता ही नहीं होता कि नीचे क्या गिरा रहा है वो, और उससे पूछेंगे उसमें खून आ रहा था, उसको तो नहीं पता, फ्लड सिस्टम है यहाँ पे, तो बह गया, म्यूकस आ रहा था जी। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, तो उनकी बातों को पर ना जाएं, उनका स्टूल कलेक्शन देखिए, खुद अपने आँखों से देखिए ना। इसका रिकवरी जो होती है 5 to 7 days, लेकिन ये बाद में भी जो है ना, मैंने कहा ये इट विल टेक मैनी वीक्स, बाउल हैबिट नॉर्मलाइज करने में टाइम लगेगा।
और जिन लोगों को IBS एसोसिएटेड है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. Infection are associated with a mucous ulceration, rectal bleeding and drastic dehydration, जिनमें severity होता है. It can cause what is known as Ritter syndrome. What is Ritter syndrome? Arthritis, reactive arthritis, plus it is conjunctivitis, plus urethritis. उनकी एक कॉज जो है शिगेला भी है, और भी हैं दूसरे बैक्टीरिया, और भी हैं वायरस ये कॉज करते हैं रिचर्स डिजीज. लेकिन शिगेला के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये रिएक्टिव आर्थराइटिस, एंड ये एसोसिएटेड ऑल्सो भी हेमाटोलॉजिक सिंड्रोम की जो कॉज है, जो चीज़ें खुला है, लेकिन ये वो भी कर सकता है, शिगेला भी कर सकता है, क्योंकि उनकी जेनेटिक जो है वो कंपोजिशन पैरेलल होती है आपस में. और पॉसिबल सीक्वल दैट हैव बीन रिपोर्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द शिगेलोसिस. एक अहम बात है, और ये आपके लिए सवाल छोड़ दिया मैंने नहीं जवाब देता. मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इंक्लूड सीजर्स. अब ये मुझे बताएं कि वो कौन से डायरियाज हैं या वो कौन सी डिसेंट्रिक स्टेट्स हैं जिससे सीजर डेवलप होते हैं. ये आप सोचिए और बताएं. सीजर्स एसोसिएटेड विद डायरिया, तो ये अब आपके नहीं छोड़ दिए, अब आप बताइएगा सोच के. ना कंपैरिजन जो है ना बिटवीन एमीबिक बैसिलस डिसेंट्रिक को किया गया है कि बहुत क्लोज है. सिम्टम क्या है? अकरेंस ये है कि एमीबिक डिसेंट्री में यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिक केसेस में आपको मिलता है, पूरी फैमिली में आपको नहीं मिलता. ये बैसिलस डिसेंट्री में जो होता है कि एक फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होगा तो दूसरा भी इन्वॉल्व हो सकता है, तीसरा भी इन्वॉल्व हो सकता है. इन्फेक्टिव है. अगर हाइजीन की चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर तो ये पूरी फैमिली के अंदर ट्रैवल कर जाएगा. ऑनसेट इम्यूनिटी डिसेंट्री ग्रेजुअल होता है. बैसिलस डिसेंट्री जो होती है उसके अंदर धमाका खेज एक्यूट होता है. फीवर जो है यूजुअली लो ग्रेड होता है, माइट बी इन द केस ऑफ द लिवर एब्सेस, लेकिन इसके फीवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इज हाई ग्रेड फीवर यू फाइंड, और वो ग्रेजुअली डाउन होता है. चिल्ड्रंस में एब्डोमिनल कैंसर मॉडरेट है, इसमें सीवियर है बिकॉज ऑफ द वाइड अल्सरेशन. हेयर स्मॉल अल्सरेशन. स्टूल फाउल स्मेलिंग है, नॉट फाउल स्मेलिंग है बैसिलरी में. आप इसे इंट्रम्स में मिलेंगे, इसमें डिस्क्रीट मिलेंगे. अगर आप माइक्रोस्कोपी करेंगे पस सेल्स कांटी हैं, इसमें न्यूमरस हैं, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. एजोनोफिल्स प्रेजेंट. अब ये एक देखिए इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ आपको बता रहा हूँ. जो चीज़ डिसेंट्री कॉज कर रही है वो है पैरासाइट प्रोटोजोआ. वो जो है इजोनोफिल यूरिन के अंदर भी पास कर सकते हैं, और वो इजोनोफिल जो है वो स्टूल में भी पास कर सकते हैं. इसमें एब्सेंट और रेयर है. बैक्टीरिया न्यूमरस होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हैं जो एंटीनोबैक्टीरियसी वाले हैं. इसके अंदर स्कांटी नॉन मोटाइल होते हैं. वो मोटाइल बैक्टीरिया आपको मिलेंगे इन एमीबिक डिसेंट्री में, क्योंकि वो एसोसिएटेड होते हैं. और वो जो है वो आप वैसे भी अगर नॉर्मल स्टूल में भी आप देखेंगे तो आपको, अगर आप कल्चर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिल जाएंगे. वो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं. उसमें ये होता है कि जब बैसिलरी होती है तो वो मास्क हो जाते हैं और नॉन मोटाइल हो जाते हैं. एंटीमीवास्टालिटी का कि ट्रोपोजाइट मिलना चाहिए. सिस्ट मिलेगा तो ये क्रॉनिक कैरियर होगा. ट्रोपोजाइट चाहिए आपको. इसमें तो एब्सेंट होता है. और ग्रोथ ऑन कल्चर निगेटिव होती है. कल्चर नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है इसका कल्चर. स्पेसिफिक कल्चर मीडिया अगर यूज़ करें तो आप बैसिलरी डिसेंट्री को डायग्नोस कर सकते हैं. गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है. और ये बैसिलरी को दिखाया है, देखें इसके अल्सरेशन है वाइट, बहुत बड़े बड़े अल्सरेशन. इसने जो है ना एपिथेलियम और सब एपिथेलियल लेवल इन्वॉल्व किया है. लेकिन अगर एमीबिक डिसेंट्री में देखेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत गौर से देखेंगे पिन प्रिक्स नजर आएंगी, जैसे किसी ने पिन मारी है इसके अंदर और वहाँ से ब्लीड किया इसने. पिन प्रिक अल्सर्स, वेरी स्मॉल अल्सर्स, डिस्क्रीट है ये अल्सर्स. वो नहीं डिस्क्रीट है, वो काफ़ी हद तक जो है ना एनकम्युलेटेड हो गए हैं आपस में. अब ये हमारे एक शागिर्द जो होते हैं वो इस तरह लिखते हैं. देखिए इसको दोनों को कंपेयर किया गया है और इन्होंने इसको कंपेयर इस तरह से किया जैसे कि मैंने अभी आपको कंपेरिजन दिखाया है. इसमें याद रखिएगा कि इसमें एक चीज़ जो है
इस ज़माने में बहुत पढ़ाई जाती थी कि इसके जो स्टूल जो पास करता है आदमी तो सागू जैसे स्कूल होते हैं, ग्रीन टिंजल के स्टूल्स होते हैं सागू के। लेकिन बेसिलरी के वाले में करंट जेली की टाइप के आपको स्टूल मिलेंगे जो ब्लड म्यूकस मिक्स ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, यानी दिन में 4 और 5, ठीक है ना। इसके अंदर नॉट मच, इसमें मार्क होती है, बार बार जाना पड़ता है, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। लेकिन अगर अमाउंट देखें तो ये बल्कि वो स्टूड देता है हमें भी, और ये इसका स्कूल देता है। ये एक चीज़ काम की है इसमें, ये हमारे स्टूडेंट अगर वो बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते थे हम लोग पहले प्रेजेंटेशन के लिए इस तरह से, तो वो आपको दिखा दी, बहुत पुराने ज़माने में इस तरह से करते थे। अब इसकी डायग्नोसिस आपको कल्चर चाहिए, कल्चर शुड बी द यूरिया hydrogen negative ever inoculated, triple sugar iron slant, they react as follows: K by A gas negative है, hydrogen sulfide negative है, indole reaction mixed positive and negative है, with the exception Shigellosis which is always indole negative, mixed reaction indole के साथ। growth on the ये specific है मीडिया, इसके नाम में हैक्टियन एंटेरिक आकार तो है, लेकिन स्पेसिफिक मीडिया तैयार किया जाएगा तो प्रोड्यूस ब्लूइश ग्रीन कॉलोनीज फॉर शिगेला एंड ब्लूइश ग्रीन कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर फॉर द साल्मोनेला। अब अलग अलग वही साल्मोनेला को भी कर सकते हैं, उसमें ब्लैक सेंटर्स मिलेंगे, इसके अंदर ब्लूइश ग्रीन कॉलोनीज मिलेंगे। और ये आपको प्रूव करना होगा कि ये शिगेला है, कल्चर मीडिया सब कल्चर फिर सब कल्चर, तब ये जाके आपको हासिल होगा, वरना नहीं होगा। मैनेजमेंट में ज़ाहिर बात है आपको जनरल मेजर्स करने हैं। शुरू में जो है ना आप दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो डायफेनोक्सिलेट लेप्रामाइड दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोलॉन्ग डायरिया की प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन को करेंगे, और ये हम WHO वाले रिकमेंड नहीं करते इसमें। अगर डिसेंट्री है तो उसमें तो करते नहीं हैं, डायरिया की कुछ केसेस में कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल वो उन्होंने मना किया है कि ना करो, क्योंकि ये इन्फेक्शन को प्रोलॉन्ग करेगा, स्टेसिस को रोक देगा, जो उसको बाहर जाना चला चाहिए, निकल जाना चाहिए, अब आपने रोक दिया उसको, अब वो पेनिट्रेशन के चांसेस को बढ़ा दिए आपने, तो डिजीज़ क्या होगी, फिर प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो वो डॉक्टर साहब जिनके वालिद साहब बीमार थे, अब मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो भाई ये शिगेला के बारे में आपने सोचा है? आपने सोचा था इनको शिगेलोसिस होगा? उनकी जो सिम्टम है वो शिगेलोसिस वाले हैं सारे, वो IBS के पेशेंट भी हैं, तो अब वो प्रोलॉन्ग हो गया वो इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड इन सीवियर केस, वो तो आप करते ही हैं, ज़्यादा ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में तो उसके नहीं है, जो देते हैं वो आप दे दें। ज़्यादा क्यूनोलोन्स बहुत अच्छे हैं इसमें, या फिर आप सेफ्रॉन जिसको कहते हैं, कोटामैक्सोजोल, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फोमेथाजोल, इसमें एम्पिसिलिन बट नॉट अमॉक्सिसिलिन was effective in treating the disease previously, ampicillin। लेकिन इसमें जो एक नई ड्रग है, ये बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ, इसमें जो नई ड्रग है, ये मेरे इल्म में भी नहीं है, मेरे इल्म में है ही नहीं, हालांकि ज़ाहिर काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, मुझे नहीं मालूम है, मेरे साथियों को पता होगा। तो ये क्या चीज़ है? ये पिव मेसिलिना मैसिलिनम, पिव मैसिलिनम, और ये मैसिलिना से ड्राइव एंटीबायोटिक हैं, जो कि ज़ाहिर है कि जिनसे ड्राइव करते हैं, ये माउल है, ये माउल उससे ड्राइव करते हैं, और इसका नाम है पिव मेसिलिना। ये एमसिल का ये नाम से ट्रेड नेम है इसका। ये 200 मिलीग्राम होती है इसकी डोज, और ट्वाइस और थ्राइस अ डे देते हैं, तब जाके ये इन्फेक्शन जो होता है, ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आप हम ये बाहर लोग इम्तहान दे रहे हैं, उनमें अगर पूछ रहे हैं फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन शिगेलोसिस, तो वो तो इसको टिक कर देंगे ना, यानी क्यूनोलोन्स को, या फिर ये इसको टिक कर देंगे अमॉक्सिसिलिन को। ये नाम उनके लिए बिल्कुल नया हुआ, पिव मैक्टिलिन नाम, ये ड्रग अवेलेबल है। असल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, ये रेजिस्टेंट इचेरिटोकोलाई
क्योंकि दोनों डिजीज बहुत क्लोज हैं आपस में। तो पेनिसिलिनम जो है अगर ये मिल जाए और वो खिलाएं आप, तो बड़ी स्पेसिफिक ड्रग है ये आप ऑनलाइन मिल सकती है, अगर आप ट्रायल करेंगे तो मिल जाएगी। और इसको अगर आप 1 वीक भी दे दें तो पेशेंट के जो सिम्टोमेटोलॉजी है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके लिए उन्होंने ज़ाहिर है कि हाइजीन लोगों को बताएं क्या होती है, और ये हम बार बार जिक्र करते रहते हैं। बच्चे अपने नाखून काटें और बच्चे हाथ धोएं और ये वो हो रहा है। वैक्सीन सारी फेल हो गई है। आपने कहा भाई स्पेसिफिक वैक्सीन बना, तो शिगेला के तो सीरोटाइप और सीरोवर्स हैं बहुत सारे, और लाइव एटेन्यूएटेड इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, कॉन्जुगेट ट्राइबोसोमल प्रोटियोसियम वैक्सीन। लॉन्ग स्टैंडिंग WHO टारगेट फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा है, अब तक 40 साल हो गए कोशिश करते हुए उनको। जहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है उनको रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। मलेरिया की वैक्सीन नहीं बना सके, हेपेटाइटिस C की वैक्सीन जो है आप नहीं बना सके, B की बना सकें, C की आपको नहीं बना सके, E की नहीं बना सके, स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बना सकते। अब कुछ जगहों पे तो वैक्सीनेशन पॉसिबल है, कुछ जगहों पे वैक्सीनेशन आप नहीं बना सकते। तो फिर ये है कि आप अपने हाइजीन को दुरुस्त करें। बात ये थी कि इस इन्फेक्शन को डिस्कस करने का क्या मकसद था। ये 10 मिनट का डिस्कशन जो है वो 40 मिनट का हो गया। आपको कमिट टू मेमोरी कराना था कि इसको भूले ना। तो वो डॉक्टर साहब जिन्होंने मुझसे पूछा है अपने वालिद के बारे में कि अभी तक जो है ना उनको पेट खराब हुआ था, तो ये हुआ था, और सब बुखार हुआ, फला हुआ, ये हुआ, अब जो है ना वो अभी भी जो है वो तकलीफ बता रहे हैं। तो भाई इसलिए बता रहे हैं कि वो हमने ज़रा प्रिवेंट करने की कोशिश की, हमें एमोडिन भी दिए थे उनको, याद करें हम, जिसमें वो ज़्यादा तकलीफ में थे, एमोडिन दिया, वो प्रोलॉन्ग गया इन्फेक्शन ये। और अभी भी अगर मौजूद है फीवर लो ग्रेड अभी भी है, तो ये ड्रग को तलाश कीजिए आप, पिवमेसिलिना, दैट इज एमसिल। और अगर आपको नहीं ये मिलती है तो फिर अब इसमें ऑगमेंटल का ट्रायल दीजिए, 5 डेज़ का ऑगमेंटल का ट्रायल दे दें और उसके साथ कंबाइन कर दें मेट्रोनोडोजोल, ताकि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया ना हो। इस तरह से कवर अप कर लेंगे आप। शिगेल्लोआ है मौजूद, आपके इलाके में मौजूद है, लेकिन आप इसे पकड़ नहीं सकते। दिमाग मारेंगे तो ये होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।